Yes, come on, Divya, Vaibhav, Preeti. Can we have some more energetic words to describe how you are feeling today? मतलब अगर नहीं भी अच्छा लग रहा है तो भी अपने आप को मोटिवेट करना है कि यस, बिकॉज आई हैव द कैपेबिलिटी टू टर्न माय डे इनटू समथिंग रियली प्रोडक्टिव. So excellent, very good. That is the word I'm looking for. Come on, Vaibhav, Preeti, feeling motivated. Awesome. That's really awesome. So now let's start with our day. अब हमें क्या करना है, एक और छोटा सा एक्टिविटी करना है. I request everyone to just close your eyes and try to think what we studied day before yesterday. उस दिन हमने कुछ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर वगैरह के बारे में पढ़ा था. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज क्लोज योर आइज. ये जस्ट एक मेमोरी गेम है. मतलब मैं जो आपको पढ़ाऊंगी ये आज या कल तक याद नहीं रहना चाहिए, ये एक्चुअल इंटरव्यू तक आपको याद रहना चाहिए. तो ये छोटा सा एक एक्सरसाइज करेंगे जिससे हमारे दिमाग में डायरेक्टली चीजें स्टोर हो. हमेशा हम लोग बुक्स को रेफर करने की जरूरत ना पड़े. सो वी बिकम मोर इंडिपेंडेंट. ओके, so please close your eyes and just do a recap of what we studied in our previous session. And once you're done, please type D for done in the chat box. इतना जल्दी प्रणव? फास्ट, सुपर फास्ट. डडा 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 खत्म. ऐसे किया क्या प्रणव ने? तुम लग रहा है रजनीकांत के भाई हो. So now I can see a couple of more D for done coming up in the chat box. तो एक बार हम ओपन करते हैं हमारे लास्ट सेशन के नोट्स को. And let's do a quick recap, right? So we were discussing the content and the timeline. ये वाला तो नहीं था अपना सेशन. एक मिनट. Yeah, this is what we had covered. So we had discussed about the different components of computer. We had discussed that CPU is the most powerful, most fastest unit on our device, on our computer system. Input output device is used to communicate with the computer system. RAM, that is random access memory. Why random? Because the time required to fetch the data will be same, irrespective of where the information is placed. फिर उसके बाद हमारे पास हार्ड डिस्क रहेगा. नाउ रैम एंड हार्ड डिस्क बोथ आर अ पार्ट ऑफ द मेमोरी डिवाइसेस, बट द प्रॉब्लम इज हार्ड डिस्क इज ह्यूज मेमोरी बट द स्पीड इज वेरी स्लो, whereas random access memory is very very fast but its size is very low. So when we want to store the data permanently, it's a permanent, hard disk is a permanent storage device, non volatile device, whereas RAM is a volatile device. So whatever data you have on RAM, that will be erased once you switch off your system. So when you switch on the computer system, the data from the hard disk is transferred onto the RAM, and from the RAM, the CPU will start fetching the instructions. So when our PC is switched off, so we bring the data from, so there is another unit that is a ROM, that is read only memory. So read only memory will be used to transfer the operating system from the hard disk to the RAM, and
this is done by a program called as Bootstrap Loader. So Bootstrap Loader will load the operating system into the RAM, and from there the CPU will start fetching the instruction. So CPU always will communicate with the RAM and the ROM directly. हाँ, तो एक और पॉइंट जो शायद मैंने नहीं बोला आपको, इसका नाम रीड ओनली मेमोरी क्यों है? बिकॉज द प्रोग्राम दैट इज स्टोर्ड हियर, इट इज अ बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम. इसका काम क्या है? ओएस को लोड करना है रैम पे. तो अगर ये वाला प्रोग्राम आपने चेंज कर दिया या इसको करप्ट कर दिया, खराब कर दिया, तो हमारा पीसी स्टार्ट ही नहीं होगा, ऑन ही नहीं होगा. हैव यू हर्ड द वर्ड देयर इज अ बूटिंग प्रॉब्लम? कभी सुना है आपने ऐसा? So most of the time this happens because there might be some problem with the ROM, the program that is stored on the ROM. इसलिए उसको रीड ओनली मेमोरी रखा गया है ताकि आसानी से कोई इसमें चेंजेस ना कर सके. Fair enough? Everybody is fine with this? Okay, so primary memory is something to which CPU will directly interact. So RAM and ROM are part of the primary memory, and secondary memory is the hard disk. So CPU will not interact directly with the hard disk. The data will be transferred from the secondary memory to the primary memory, and then the CPU will interact. Then we started our discussion about the software. तो कोई भी कंप्यूटर सिस्टम होगा तो उसमें हार्डवेयर होता है. हार्डवेयर के ऊपर एक सॉफ्टवेयर होता है दैट इज टर्म्ड एज फर्मवेयर, जो कंपनी मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करते हैं. ऑन टॉप ऑफ इट वी हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ओएस होता है वो हार्डवेयर और यूजर, एंड यूजर के बीच में इंटरफेस का काम करता है. ऑन टॉप ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम वी इंस्टॉल मल्टीपल अदर सॉफ्टवेयर्स, दोज आर टर्म्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स. एमएस ऑफिस, गूगल क्रोम एटसेट्रा, ये सब जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं. यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. आई होप एवरीवन इज फाइन विद दिस. So today what we are going to learn, we will be learning the algorithm building. Okay, how to create the algorithms. That is what we are going to learn today. Now, we were discussing कि अभी हमें क्या करना है. हमारे पास है कंप्यूटर सिस्टम, और कंप्यूटर सिस्टम से हमें क्या करना है? बात करना है. मतलब हम चाहते हैं कि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हमारे लिए कुछ ना कुछ टास्क, कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करे. नाउ कंप्यूटर इज अ मशीन. कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है. सो मशीन, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे सामने एक फैन है, राइट? नॉर्मल फैन, सीलिंग फैन है. सीलिंग फैन को मुझे ऑन करना है, तो हम कैसे ऑन करेंगे उसको? सिंपल है ना, बटन को ऑन प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा. ऑफ करना है तो फिर से उसी बटन को प्रेस करेंगे, ऑफ कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा. दिस इज द लैंग्वेज विच द फैन अंडरस्टैंड्स, करेक्ट? इसके अलावा आप कुछ भी और तरीके से उसको इंस्ट्रक्शन दो. आप उसके सामने खड़े होके तालियां बजाओ या उसको जंप करके कुछ बोलो, उसको समझ में आएगा क्या? Yes, everyone. Will the fan understand anything other than switch on, switch off? लैंग्वेज कुछ और उसको समझ में आएगा? नहीं. तो सिमिलरली हमारा जो कंप्यूटर है, जो कि मशीन है, इट विल ऑल्सो अंडरस्टैंड अ स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. तो जब हम उसको वैसे इंस्ट्रक्शंस देंगे तो वो प्रॉपर काम कर पाएगा. तो हमें कोई काम कंप्यूटर से कराना है तो उसको एकदम छोटे बच्चे को जैसे हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, मतलब छोटा बच्चा खुद से डिसीजन नहीं ले पाएगा, तो ऐसा आप अज्यूम करो कि वो खुद से कुछ डिसीजन नहीं लेगा. हमें ही हर चीज छोटी बातें उसको खुद समझानी होंगी और उसके बेस पे वो काम करेगा. फेयर ना? सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ एडिंग ऑफ टू नंबर्स. मुझे क्या करना है? कंप्यूटर से एक काम करवाना है. व्हाट इज दैट टास्क? टू परफॉर्म द एडिशन ऑफ टू नंबर्स. तो ये इंस्ट्रक्शंस मुझे कंप्यूटर को देना है, बट इसको हम स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे? सो नाउ वी आर नॉट फोकसिंग ऑन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ना हम पाइथन के बारे में बात कर रहे हैं, ना ही हम C++ के बारे में बात कर रहे हैं. वी आर ओनली फोकसिंग ऑन हाउ टू परफॉर्म एडिशन ऑफ टू नंबर्स. तो तुम्हें क्या लगता है, व्हाट शुड बी माय स्टेप नंबर 1? देखो, टास्क है, तुम समझ लो एक छोटे से बच्चे हो तुम, वैसा सोचो, या तुम किसी छोटे बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो जिसको करना क्या है? दो नंबर्स को ऐड करना है. तो तुम उसको स्टेप बाय स्टेप में सबसे पहला स्टेप उसको क्या बोलोगे, क्या करना है?
You have to teach a kid how to perform addition of two numbers. Get two numbers. तो get मतलब किससे get करना है? From where he has to get the numbers? User. Perfect. So my step number 1 would be accept first number from user. और उस नंबर को चलो हम अपने आगे के कैलकुलेशन के लिए एक नाम दे देते हैं num1. और उसी तरह से हमें उसको बोलना है एक्सेप्ट द सेकेंड नंबर फ्रॉम यूजर और उसको नाम देते हैं num2. उसके बाद दो नंबर्स मिल गए. अभी क्या करेंगे हम? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? परफॉर्म एडिशन. सो कैन आई सिंपली राइट हियर सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2? या फिर आप चलो इसको बाद में कर सकते हैं, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं परफॉर्म एडिशन ऑफ num1 एंड num2. ऐसे लिख सकते हैं. आई होप यू ऑल वुड एग्री विथ मी. अब मेरा समेशन हो गया, एडिशन हो गया और जो फाइनल रिजल्ट है वो किस में है? सम में है. तो अब क्या करेंगे? व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप? डिस्प्ले द रिजल्ट एज आउटपुट. सो डिस्प्ले रिजल्ट एज सम. ऐसा लिख दो. So can you please tell me everybody, are you okay with this algorithm? सबको क्लियर है? चलो तो फिर नेक्स्ट लेट्स डू वन मोर. So now you have to perform or write an algorithm to find the area of a rectangle. Can you do that, everyone? Based on the sample that you have in front of you, please write algorithm to find area of a rectangle. Yes. So can you tell me step number 1? अगर रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो अपने को क्या क्या यूजर से लेना पड़ेगा? एक्सेप्ट द लेंथ. वेरी गुड. और ये मैं जानबूझ के देखो हम लोग एक ही लाइन में एक्सेप्ट लेंथ एंड ब्रेड ऐसा नहीं लिख रहे हैं. क्यों? पाइथन के वजह से. पाइथन को ऐसा ही चाहिए. ठीक है. सो एक्सेप्ट लेंथ फ्रॉम यूजर. उसको नाम दे दिया समझो एलियन. ओके. अब लेंथ और ब्रेथ ले लिया. अभी नेक्स्ट क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? कैलकुलेट एरिया. करेक्ट है. कैलकुलेट एरिया. So how we are going to calculate area? Can we write here area is equal to length multiplied by breadth? हो गया. अभी फाइनल स्टेप क्या होगा? प्रिंट या डिस्प्ले रिजल्ट. Where is the result? It is stored in the variable that is area. Got it everyone? ये एल्गोरिथम भी क्लियर है आप सबको? Everybody is okay with this algorithm as well? Yes. So now let's move one step ahead. अब कौन सा करेंगे हम लोग? Okay, let me give you another question.
समझो कि हमारे पास एक फील्ड है जो कुछ इस तरह की है। ओके, आई हैव क्रिएटेड अ फील्ड, मतलब कोई एक खेत है, ऐसा टाइप का खेत है। तो दिस इज अवर सेंटर। तो ये जो सर्कुलर दिख रहा है ये है इसका आर रेडियस, ये पूरा इसका लेंथ है, और ये जो चीज है दिस इज एक्चुअली अवर ब्रेड्थ, but breadth is equal to 2 times r. So this is the dimension I am giving you. Now based on this you have to calculate the perimeter. Perimeter पता है आपको? Do you know the perimeter? ये सबका total निकालना है आपको. Can you write the algorithm for performing this activity now? Everyone, I request you to write the algorithm for performing this activity. Did you all understand the question? सबको question समझ में आ गया? If yes, can you please type QC, question clear, in the chat box? Because first you need to understand the question in order to solve it. So once you're done, please type D for done in the chat box. Okay, Preeti is done. Well done, Preeti. Let's wait for some other people to complete, then we will discuss. Okay. बाकी लोग, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया है क्या? Can you please type QC in the chat box that you have understood the question? तृप्ति, अच्छा प्रणव का भी हो गया. वैभव, क्वेश्चन क्लियर है? वैभव है कि वल्लभ है? वल्लभ है, हाँ सॉरी. वैभव भी है और वल्लभ भी है अपने क्लास में. अच्छा, ओमकार का भी हो गया. वेरी गुड. ओके, वेरी गुड. सो मेनी पीपल आर डन. सो लेट्स हैव अ डिस्कशन. तो अपने को करना क्या था? अपने को पेरीमीटर निकालना था. पेरीमीटर मतलब क्या कि समझो कि ये होता, मान लीजिए 20, दिस वन, फ्रॉम दिस टू दिस इट इज 20. तो यहाँ पे भी 20 होता, और मान लीजिए ये वाला जो डिस्टेंस है ये होता सपोज 15. तो रेडियस हो जाता 15/2. सो दिस होल थिंग, ये कितना होगा? 20 प्लस 15 प्लस 20. तो ये पूरा सेक्शन अपने को पता चलता. नाउ वी हैव टू ऐड दिस वन एज वेल.
So this part is actually the circumference of the circle. तो circumference का formula क्या है? 2 pi r. तो 2 pi r is for the complete circle, but ये तो आधा circle है, तो divided by 2, so that will be pi r. तो इसमें अपने को क्या ऐड करना है? pi r. So what is my radius? 5 upon 2. So 22 by 7. So 20 plus 15 plus 20 plus 22 by 7 multiplied by 15 by 2. So this will be कितना होगा ये? 165 upon 7 plus ये कितना हो जाएगा? 40 50 55. So if you do the calculation, some figure you will get, but this will be the circumference. This will be the perimeter of the figure given here. Is that fine, everyone? ये कैलकुलेशन पार्ट सबको समझ में आ रहा है? वी डोंट हैव टू फाइंड आउट द एक्चुअल आंसर बिकॉज ये तो कंप्यूटर अपने लिए करके देगा, बट अभी हम उसको सिखा रहे हैं कैसे करना है. तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या इनपुट चाहिए, व्हाट ऑल डेटा वी वांट फ्रॉम द यूजर. फाइंड perimeter of a given figure. तो जो भी फिगर या जो भी शेप अपने को दिया हुआ है उसका पेरीमीटर निकालना है. सो व्हाट यू हैव टू डू? एक्सेप्ट लेंथ एंड रेडियस ऑफ फिगर. तो इसलिए उसको हमने LDN और हाँ सॉरी एक्सेप्ट लेंथ ऑफ द फिगर. Okay, and then perimeter. Calculate perimeter. So how to calculate the perimeter? P is equal to length plus लेंथ 2 बार आएगा, ब्रेथ एक ही बार आएगा, सो B प्लस 2 पाई आर, सो दैट विल बी पाई आर. सो 22 या 3.14 multiplied by r. That will be my formula. And finally आंसर प्रिंट करना है. सो डिस्प्ले रिजल्ट. सो रिजल्ट किस में आएगा? पेरीमीटर में, P में आएगा. So if everyone is fine with this, can you please type U for understood in the chat box? ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा है तो U for understood in the chat box please. तो जो भी अपने पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये स्टेप बाय स्टेप ब्रेकिंग का अपने को आइडिया लग गया तो यहाँ से प्रोग्रामिंग एकदम आसान हो जाएगा. ठीक है. सो रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. Can you please type R for ready in the chat box? So the next question that we are going to discuss is find the sum of digits of a 2-digit number. For example, समझो है मेरे पास number that is 45. So what you have to do? 4 plus 5 निकालना है अपने को. So I want you to do this task, everyone.
पहले अपना बना लो प्रीति, फिर एक साथ करेंगे अपन, ठीक है? पहले आप लोग अपना अपना ट्राई करो, फिर हम लोग सब साथ में करेंगे. इज दैट फाइन एवरीवन? आई एम सो सॉरी, आई वाज ऑन म्यूट एंड मैं बड़बड़ कर रही थी. एवरीवन कैन सी माय स्क्रीन? चलो मैं फिर से बोलती हूँ, मैंने वो पूरा बड़बड़ किया. ठीक है, तो 45. ओके, वी डिवाइडेड बाय 10. सो 10 4s आर 40. ठीक है, ये जो 4 आया है इसको हम क्या कहते हैं बताओ? व्हाट इज दिस 4 कॉल्ड एज? एंड व्हाट इज दिस 5? 4 को क्या बोलते हैं यहाँ पे जो आया है आंसर? मैथमेटिक्स में उसका नाम है कुछ? याद नहीं आ रहा है? क्वोशंट बोलते हैं, याद है क्या? और ये जो 5 आया है इसको हम रिमाइंडर कहते हैं. So what you have to do? You have to add the quotient and the remainder. Everyone agrees with this? तो अगर हमने ऐसा किया तो 4 + 5 तो डिजिट्स का सम निकल जाएगा. यस वैभव, वल्लभ, गौरवी, तृप्ति, क्लियर है? प्रणव? Okay, so let's go ahead and write the algorithm for this. So accept a 2-digit नंबर फ्रॉम यूजर. अभी आपको क्लियरली बोलना है यूजर को कि आपको क्या करना है, 2 डिजिट नंबर एंटर करना है. नहीं तो यूजर 4 डिजिट 5 डिजिट डालेगा, है ना? तो आपको उसको बताना है कि 2 ही डिजिट चाहिए भाई, ज्यादा मत दो हमको, अभी अभी ज्यादा हजम करने की ताकत नहीं है, अभी सिर्फ 2 ही चाहिए. ठीक है, देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? वी वांट द क्वोशंट. क्वोशंट कैसे मिलेगा? ये जो नंबर है इसको हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम निकालेंगे रिमाइंडर. सो रिमाइंडर कैसे निकलेगा? तो उसके लिए एक हमारे पास ऑप्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज अ मॉड. लेट मी राइट हियर. इसको हम कहते हैं मॉड ऑपरेटर. तो ये क्या देता है? रिमाइंडर देता है अपने को. ठीक है, एंड देन फाइनली वी विल से सम इज इक्वल टू q plus r and finally display result that is sum. Yes, so everyone, कैन यू प्लीज कंफर्म? ये वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आया है? तो यू फॉर अंडरस्टूड टाइप करो प्लीज. ओके, तो अब इसी के कंटिन्यूएशन में आपको एक दूसरा सवाल देती हूँ मैं कि आपको फिर से 2 डिजिट नंबर यूजर से इनपुट करना है, लेकिन उसको रिवर्स करना है. मतलब वो अभी आउटपुट में क्या दिखना चाहिए? 54 दिखना चाहिए. उल्टा कर देना है उसको.
सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज ट्राई दिस. कुछ ये बेस है, इसी को लेकर उसको करोगे. प्लीज ट्राई दिस वन एवरीवन. यूजर से पहले इनपुट लो 2 डिजिट नंबर और उसको आपको रिवर्स कर देना है, उल्टा करना है. वंस यू आर डन प्लीज टाइप डी फॉर डन इन द चैट बॉक्स. नहीं समझ में आ रहा है तो नो आइडिया भी लिख सकते हो. नहीं नहीं बन रहा है मैम, ऐसे आप पूछ सकते हो मुझे, ठीक है. पर थोड़ा सा ट्राई करो एक बार. क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना सबको? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन? ओके. प्रीति is saying yes. What about others? ओमकार, गौरवी, साक्षी, वैभव, वल्लभ, तृप्ति. क्लियर है क्वेश्चन? प्रणव का हो गया? वेरी गुड प्रणव. प्रीति का भी हो गया, ठीक है. ओके. तो चलो अभी हम साथ में करते हैं, ठीक है. तो अभी प्रोसीजर यही रहने वाला है. तो करना क्या है अपने को, सबसे पहले वो जो नंबर था हमारे पास जैसे कि 45, 45 को हम क्या करेंगे, पहले 10 से डिवाइड करेंगे. तो 10 4 जार 40 और ये रिमाइंडर मिल गया. तो ये अपना हो गया Q, ये हो गया अपना R. लेकिन अब अपने को करना क्या है, इसको उल्टा करना है. तो उल्टा करना है मतलब 5 शुड कम इन द टेंस प्लेस. मतलब कि R multiplied by 10 plus Q. If I write this, so 5 into 10 is 50. 50 plus 4 is 54. So that will give me the reverse. Are you understanding now? तो जिनका नहीं हुआ है वो ये बेस को लेकर कंप्लीट करो प्लीज. वल्लभ, हेलो वल्लभ, समझ में आ रहा है? हो गया, ठीक है. और कौन था? वैभव. वैभव को समझ में आया? हो गया, डन, वेरी गुड. ओमकार का भी हो गया, ठीक है. और कौन है? गौरवी, तृप्ति. तृप्ति भी डन. ऑसम. तो अभी आपको मजा आ रहा है थोड़ा सा? नाउ यू आर गेटिंग इट. तो मैं फटाक से लिख लेती हूँ, जस्ट आप एक क्रॉस चेक कर पाओगे इसके लिए, है ना. सो
Write an algorithm. Find the reverse of 2 digit number. तो कोई एक 2 digit नंबर दिया, उसको अपने को क्या करना है, रिवर्स. तो सबसे पहले एक्सेप्ट 2 digit नंबर, और उसमें हमें क्या करना है, क्यू इज इक्वल टू num divided by 10 and the remainder is equal to num mod 10. So that way I'll get the value of q and r, and then what you have to do, the reverse of the number. So reverse is r multiplied by 10 plus q. So finally we will say display reverse, which is rev. ये हो गया आपका रिवर्स का. Fair enough everyone? चलो अभी थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हाई कर देते हैं. लेट्स से द नंबर इज 435. इसमें हर एक डिजिट्स का मुझे सम निकालना है, मतलब 4 + 3 + 5 करना है. यस, गो अहेड एंड डू दिस एवरीवन. ट्राई करो पहले. मतलब एक काम करो, एल्गोरिथम मत लिखो डायरेक्टली, जस्ट आप पेन पेपर से इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करो कि मतलब मेरे पास 435 ऐसा एक नंबर है, और उसमें से मुझे तीनों डिजिट को अलग अलग करना है, और फिर क्या बोलते हैं उसको, समेशन करना है. ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन. सो फर्स्ट यू थिंक अबाउट इट, देन आई विल गिव यू द सॉल्यूशन. थोड़ा सा सोचो लेकिन आप मेरे बताने से पहले. यस स्टूडेंट्स, आ रहा है क्या कुछ समझ में, कैसे करना है? So shall we give some hint? Shall I give you some hint? Can you please type H for hint in the chat box अगर थोड़ा hint चाहिए तो. If you want some hint to solve this question, can you please type H for hint in the chat box? Omkar is saying yes. What about others?
हिंट चाहिए कि नहीं चाहिए, खुद से करोगे? चाहिए, चलो ठीक है। सो लेट मी गिव यू द हिंट। सो 435, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। सो 10 43s आर right. So this is our remainder and this is our quotient. अब ये बन गया 2 डिजिट नंबर, और 2 डिजिट नंबर का हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, तो अब इसको लेकर आगे बढ़ना है। सो दिस विल बी 43 डिवाइडेड बाय 10। तो इसको समझो नाम दे दिया हमने 4। सो दिस इज सपोज Q1 एंड दिस इज सपोज R1। तो अपने को क्या करना है, दिस प्लस दिस करना है। इज दैट ओके नाउ? कैन यू डू दिस एवरीवन? वल्लभ का हो गया? यस। So others, please take this as a base and do this. Awesome. Now this is done. चलो फिर ये मैं करती हूँ अभी आपके साथ साथ, फिर हम इसके बाद वाला क्वेश्चन कौन सा रहेगा अपना, इसी को रिवर्स करने का, ठीक है? सो फाइंड द सम ऑफ 3 digit, find the sum of digits of a 3 digit number. Accept 3 digit number from user. So this clarity you have to give to the user कि उसको 3 digit ही enter करना है, 2 digit या 4 digit नहीं चाहिए. Now, what we do is Q is equal to num divided by 10. So first R, या अपन इसको D1 digit 1 लिख देते हैं. So num mod 10, that will give me the first digit. अब next digit, that is D2. D2 कैसे निकलेगा, num num नहीं, Q divided by 10, that will give me the next digit. और फिर D3 will be Q mod 10. Finally, we will do the summation. So sum is equal to D1 plus D2 plus D3. And finally, we will say display result. So where is the result? It is in sum. ठीक है, आपने तो ऑलरेडी सॉल्व किया है, जस्ट मैं एक बार और कर दे रही हूँ ताकि एक बार आपको कहीं कुछ छोटा मोटा मिस्टेक हो। एंड सी, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं कि मेरा ही तरीका सही है, ऐसा नहीं। आप अपने समझदारी के हिसाब से ऐसा कोई भाषा आप यूज कर रहे हो जिससे आप स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को लिख रहे हो। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई वांट यू टू डू इज फाइंड द रिवर्स ऑफ द गिवन 3 digit नंबर। जैसे 435 है, उसका रिवर्स निकालना है, तो रिवर्स क्या होगा, 534, दैट विल बी द रिवर्स। सो प्लीज डू दिस एवरीवन, find the reverse of the 3 digit number. So you have this algorithm in front of you, take it as a base and try to get the reverse of the given 3 digit number.
सबको क्वेश्चन समझ में आया है ना? Everybody has understood the questions? हो गया आपका कि मैं एक्सप्लेन करूं? Preeti is done. Good job. Yes, come on everyone, do it fast. अभी सम वाला है आपके सामने, अब उसको फॉर्मूला में डालना है। तो क्या करोगे आप? इंटू 100 इंटू 10 ऐसे करके ऐड करके बना सकते हो ना एक सिंपल तरीके से। ऑफ कोर्स वी विल इम्प्रोवाइज इट फर्दर, बट एक सिंपल सॉल्यूशन आपको बता रही हूँ मैं कि अपने को 3 डिजिट में लिखा है ना, तो उसको उल्टा करना है तो 5 को मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, 3 को मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा और 4 को कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है? So let's say this number is there, that is 435. So we divide this number by 10. So 10 fours are 40. 10 threes are 30. So we got this remainder. ये अपना पहला डिजिट बना, तो मान लीजिए इसको D1 लिख दिया हमने. Now we go ahead with this part. तो 43 को लेकर हम आगे बढ़े, इसको हमने नाम दिया था Q. तो फिर से इसको 10 से डिवाइड किया. So this is suppose D2 और इसको हम लिखते हैं D3. उल्टा लिखूं क्या मैं? एक मिनट. तो इसको लिखते हैं हम D2 और इसको लिखते हैं हम लोग D3. So D1 multiplied by 100 plus D2 multiplied by 10 plus D3. Will this give us the reverse of the 3-digit number, everybody? मिल जाएगा अपने को. तो ये कितना होगा? 5 into 100 is 500. D2 कितना है? 3. तो 30. और D3 का कितना आ जाएगा? 5. So 535. So let's go ahead and solve the algorithm. सबको आ रहा है समझ में? Everybody is understanding? Yes, ओमकार, वल्लभ, वैभव, प्रीति का तो हो गया. और कौन है? तृप्ति, आपको समझ में आ रहा है? ओमकार, रिवर्स ऑफ 3 डिजिट नंबर.
So as usual, first we will go for, एक मिनट है, यहीं से मैं कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि बहुत सारा चीज तो सेम ही रहने वाला है. सो वी हैव क्यू D1 D2 D3, ये मिल गया अपने को. अभी हमें निकालना है रिवर्स. सो रिवर्स विल बी D1 multiplied by 100 plus D2 multiplied by 10 plus D3. This will be the reverse. और उसको हम कर देंगे प्रिंट. सो डिस्प्ले रिजल्ट रिवर्स. So understood everyone? If yes, can you please type U for understood in the chat box? तो अब आप एज अ होमवर्क आप क्या करोगे, अभी आपको एक आइडिया मिला कैसे एल्गोरिदम लिखते हैं, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू, आप क्या करो, जितने भी क्वेश्चंस आज मैंने कराए हैं उसका फिर से एक बार एल्गोरिदम आप लिखो बिना देखे. फेयर इनफ, जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस. और क्योंकि हम ऑलरेडी आज कर चुके हैं तो 5 से 10 मिनट में आपका हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा. अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम गोइंग टू शेयर यू विद द फर्स्ट असाइनमेंट. जो अपना पहला असाइनमेंट है पाइथन का वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. आपका जो जो भी फ्री ग्रुप में आप हो वहां पे आपको असाइनमेंट मिलेगा. आप क्या करो, वो असाइनमेंट को देखो और उसके एल्गोरिदम्स लिखने की कोशिश करो. इज दैट फाइन एवरीवन? जस्ट फॉर प्रैक्टिस. और फिर कल हम जब मिलेंगे तो हम उस पर फिर से चर्चा करेंगे, ठीक है? ये आया कि नहीं समझ में, वो आया कि नहीं समझ में, विल डू इट. एवरीबडी इज ओके विद दिस? समझ में आ रहा है सबको क्या करना है टास्क? जो आज कौन कौन से क्वेश्चंस आज हमने किए एक बार अपन देख लेते हैं एक बार. एडिंग ऑफ टू नंबर्स, चलो मैं एक नोटपैड में लिख देती हूँ ये कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं जो आज हमने किए. सो लेट मी जस्ट नोट डाउन द क्वेश्चंस. ये ऑलरेडी किए हैं तो आप जल्दी से कर पाओगे इसको. एड टू नंबर्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ गिवन शेप. उसके बाद मेरे ख्याल से वो सम वाला ही था. Sum of two-digit number, reverse of two-digit number, और फिर sum of two-digit number, reverse of sum of three-digit number एंड रिवर्स ऑफ थ्री डिजिट नंबर. ये जो अभी 2 डिजिट और 3 डिजिट का हमने रिवर्स किया है ना, ये थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज होगा अभी आगे जाके, ठीक है? वो कल कैसे इम्प्रूव करना है वो कल सिखाऊंगी मैं. बट दिस मच एवरीबडी हैज अंडरस्टूड, राइट? तो आप क्या करोगे आज एज अ होमवर्क, पहले तो ये रुको मैं चैट बॉक्स में डाल देती हूँ आपको, ठीक है? तो आप लोग कॉपी करके रख लो कि ये आपको फॉर प्रैक्टिस करना है. सो आई एम सेंडिंग दिस अक्रॉस इन द चैट बॉक्स, यू कैन कॉपी इट फ्रॉम द चैट बॉक्स. मैम एक क्वेश्चन विचारू का. यस प्रीति बोलो. You can unmute and ask, not a problem. हेलो हाँ बोलो प्रीति. मैम, जो पाइथन फंडामेंटल का जो कोर्स था ना हाँ वो आप नहीं पढ़ाएंगे क्या? नहीं, वो अभी बंद किया है प्रीति, क्योंकि सिर्फ पाइथन फंडामेंटल करके ना कोई कंपनी ले नहीं रही है. तो वो उनको जो प्रोफाइल हम भेज रहे हैं ना तो वो बोल रहे नहीं, इसके साथ या तो डेटा साइंस होना चाहिए या कोई तो फ्रेमवर्क होना चाहिए.
हाँ, पर मैंने सर को कॉल किया था, उन्होंने कहा था कि पाइथन फंडामेंटल में जो पाइथन है वो डीप में पढ़ाएंगे। पाइथन देखो, पाइथन फंडामेंटल मतलब कोर पाइथन। ओके, हाँ, मैंने वो आपने पहला दिन अटेंड किया था ना सेशन, तो मैंने उसमें डिटेल में सिलेबस एक्सप्लेन किया है, याद है आपको? किया था, लेकिन जो डेटा साइंस का कोर्स है ना उसमें पाइथन सर बोले कि वो कम लेने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे पता नहीं है कौन से सर से बात किया आपने, नाम बताओ मुझे। मुझे पता याद है? नहीं है। अच्छा, ठीक है, हाँ, लेट मी क्लैरिफाई। चाहे आप पाइथन फंडामेंटल, अभी फंडामेंटल तो क्लोज किया है, पाइथन फुल स्टैक या पाइथन डेटा साइंस, दोनों के लिए पाइथन सेम रहेगा और वो पूरे डीप में पढ़ाया जाएगा एंड तक। ठीक है, सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। उसके बाद डेटा एनालिसिस रहेगा, और उसके बाद जो लोग फुल स्टैक के लिए हैं वो फ्लास्क और जैंगो के लिए जाएंगे, और जो डेटा साइंस के लिए हैं वो लोग डेटा साइंस के लिए जाएंगे। ओके क्लियर है? मैम, थैंक यू। ठीक है, सो पाइथन पूरा डीप में ही कवर किया जाएगा, शॉर्ट में नहीं रहेगा। ठीक है, कोई भी मॉड्यूल आप सेलेक्ट करो। Yes. So that's all for today's session, everyone. As I said, assignment number 1 will be shared. आप उसको go through करो और उसके assignments फिर solve करो। ठीक है, फिर कल हम जब मिलेंगे तो कोई सा कुछ कुछ असाइनमेंट समझो आपको नहीं समझ में आया, विच इज परफेक्टली फाइन, क्योंकि आज पहला ही दिन है ना एल्गोरिदम बिल्डिंग का, तो सब कुछ नहीं समझ में आएगा तो भी ठीक है, बट आप जस्ट एक ट्राई तो करो, है ना? तो एक प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। ऑलराइट, yes, so that's all for today's session, everyone. So bye bye, we will see you tomorrow. Okay, bye everyone, have a good day, take care.